ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ شہر کا مشہور بوائز کالج تھا۔ وہاں کے طلباء مہنگی گاڑیوں، کپڑے، برانڈڈ گھڑیوں اور بگڑے رویوں کے مالک تھے۔ اسی کالج کے بالکل سامنے ایک سرکاری اسپتال تھا، چھوٹا، پرانا اور بیماریوں کی سرانٹ سے بھرا، غریب عوام کا اسپتال۔ مگر وہیں روز ایک روشنی کی کرن آتی تھی۔ ایک 18 سالہ میرال جو اپنی بیمار بہن کے لیے گھر سے کھانا لے کر آتی، سادہ سے کپڑے، دوپٹے میں، سادہ سی شکل، مگر عجیب کشش تھی اس میں، جو دیکھتا قریب سے اسے خود کی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اس کی کشش، وہ 2 بہن، 1 بھائی، ماں باپ، چھوٹی سی فیملی تھی ان کی۔ بہن 10 سال کی تھی، وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ اس بار بھی یہی حال تھا۔ اس کا باپ سرکاری ملازم تھا، پر میرال اکثر کبھی بڑے خواب دیکھتی تھی، لیکن جانتی تھی ایسا اس کی قسمت میں کچھ نہیں۔ وہ خود ایک عام سرکاری کالج میں پڑھتی تھی، ابھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بہن کی بیماری کی وجہ سے ماں گھر پر کم اور اسپتال میں زیادہ پائی جاتی تھی، اسی وجہ سے اسے گھر کے کام کرنے پڑتے، کھانا بنا کر یہاں دینے آنا پڑتا تھا۔ روز بھائی اسکول چلا جاتا تھا۔ عمیر ہمدانی نے جب پہلی بار اسے اسپتال کے گیٹ پر اندر جاتے دیکھا تو نظریں وہیں ٹھہر گئی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ لڑکی اپنی طرف توجہ کھینچ رہی تھی۔ عمیر ہمدانی شہر کے امیر ترین بزنس مین کا بگڑا ہوا بیٹا، 25 سال کا نوجوان، ہینڈسم، لڑکیاں دیوانی تھیں اس کی، عادت سے میچور، دل بہلانے کے لیے کچھ بھی کر جانے والا۔ اس نے کئی بار میرال کو آواز دی، کچھ کہا، کچھ ہنسا، مگر وہ لڑکی ہر بار نظریں چرا کر گزر جاتی۔ یہ نظر اندازی عمیر کو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ لڑکیاں اس کے ایک اشارے کی دیوانی تھی، اور یہ اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ایک دن وہ میرال جب اسپتال سے باہر نکلی تو سڑک پر کھڑی عمیر کی کار کے پاس سے گزری۔ عمیر نے مسکرا کر دروازہ کھولا۔ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ چھوڑ دوں؟ وہ سہم گئی، نظریں جھکا کر چلنے لگی۔ میرال اکثر ان بوائز کالج کے لڑکوں سے سہم جاتی تھی۔ اس نے بہت سنا تھا یہاں کے امیر بچے بہت بگڑے ہوئے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کی ماں گھر آتے جاتے اسے ہدایت دیتی رہتی تھی کہ خیال سے آؤ اور خیال سے جاؤ۔ عمیر نے کئی بار کوشش کی اس کا راستہ روکنے کی، بات کرنے کی، پر اس میں آج تک ہمت نہ ہوئی تھی گھر میں کسی کو بھی بتا سکے۔ وہ بہت ڈرپوک لڑکی تھی، مگر اس بار عمیر نے ہاتھ بڑھایا اور زبردستی اسے اپنی کار میں بٹھا لیا۔ ایک بار میری بات تو سن لو، اتنا بھی غرور اچھا نہیں ہوتا۔ وہ رونے چیخنے لگی تھی کہ عمیر نے اسے بے ہوش کر دیا اور پھر سیدھا فارم ہاؤس کے اندر وہ میرال جیسے ہوش میں آئی، روتی چیختی، مگر عمیر بس اسے دیکھتا رہا۔ پہلی بار کوئی لڑکی تھی جس نے اس کی نظروں کی تپش کے آگے نظریں جھکائی تھیں، مگر عجیب بات، وہ خود ہی اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسو، بڑی سیاہ آنکھیں عمیر کو اپنا اسیر بنا رہی تھی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ عمیر نے آہستہ سے پوچھا۔ چھوڑ دیں مجھے گھر جانا ہے۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میرال ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کا رونے کا انداز بہت کیوٹ لگا۔ عمیر لمحہ بھر کو چپ ہوا، پھر اسے دیکھتا رہا۔ یہاں وہ لایا کسی اور نیت سے تھا، پر جب نزدیک سے دیکھا تو دل کے حالات بدلنے لگے۔ پھر بولا، نکاح، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ ساکت رہ گئی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس امیر زادے کو دیکھا۔ عمیر جیسے خود حیران تھا اپنے لفظوں پر، مگر شاید اس کی سادگی، اس کی آنکھوں میں ڈر اور دل میں چھپی نفاست نے عمیر کے دل پر وہ پہلا وار کر دیا تھا۔ میں نہیں کروں گی، مجھے جانے دو۔ میرال کا انکار اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ابھی تک دیوار سے لگی کھڑی تھی، مقابل بہت پاس تھا، میرال کی دھڑکنوں کا شور سن سکتا تھا۔ اگر انکار کرو گی تو میں وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ ڈارلنگ، میں بہت برا ہوں، یہ تم جانتی ہو نا۔ اب نہ نہیں سنوں گا۔ عمیر ذرا اس پر جھکا تو میرال نے خوف سے آنکھیں بند کی۔ عمیر اس کے خوفزدہ چہرے سے لطف اندوز ہونے لگا تھا، اور پھر تھوڑی دیر میں ہی اس کی دھمکی کام آ گئی۔
उसी शाम वो लड़की फार्म हाउस से निकाह शुदा बीवी बनकर निकली और यूं एक बिगड़े नवाब ने ज़बरदस्ती से जुनून की राह पर निकाह का बंधन बांध दिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस ज़बरदस्ती के बाद वो खुद मोहब्बत की कैद में हो जाएगा। मिराल की आंखों में, उसकी खामोशी में, उसके खौफ में और फिर उसकी मोहब्बत में। उमैर ने रात होने से पहले उसे घर छोड़ दिया, जिससे कुछ हुआ ही ना हो। मिराल ने रो रो कर खुद की हालत बुरी कर ली थी। उसका देर से घर आना, घर वालों ने बहुत पूछा तो उसने झूठ बोला कि वो दोस्त के घर चली गई थी, बताना भूल गई। सारी रात वो रोती रही कि अचानक क्या हो गया था उसके साथ। वो इस सब के लिए तैयार नहीं थी। वो बहुत मासूम और सादा थी, भोली सी। कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लड़ाई करना नहीं आता था। जहाँ लड़ाई देखती वहाँ रोना शुरू हो जाती। उसे बस यही एक काम आता था, रोना धोना। वो मासूम बेवकूफ़ सी थी, कोई भी फ़ायदा उठा सकता था उसकी बेवकूफ़ी का। ऐसी ही थी मिराल। लेकिन उमैर को ना जाने क्यों वो अच्छी भी लगी तो गुस्सा भी था। वो कहता हर कोई उसके पीछे चलता रहे, कोई उसे जवाब ना दे। मिराल का डर से भागना, उससे दूर रहना, जवाब ना देना उसे गुस्सा दिला गया। उसकी अना को बीच में ले आया। मिराल नहीं जानती थी उमैर हमदानी गुस्से का तेज़, शिद्दत पसंद और गरूर उसकी नाक पर रहता है। हद से ज़्यादा ज़िद्दी और जुनूनी था वो। अब मिराल को पता चलेगा कि किसके साथ वो जुड़ चुकी है। 2 दिन बाद वही स्याह गाड़ी दरवाजे के सामने आ रुकी। उमैर गाड़ी से उतरा, गले में सनग्लासेस, हाथ में सफ़ेद गुलाब। आओ मेरी डार्लिंग, लंच पर चलते हैं, गुलाब उसे देते हुए कहा। मिराल अभी कॉलेज से वापस ही आई थी कि उसे अपने मोहल्ले में देखकर घबरा गई। वो कल इतनी डरी हुई थी कि उसे बुखार हो गया था। आज थोड़ा बेहतर महसूस किया तो माँ ने कॉलेज भेज दिया। उमैर खुद इस वक्त कॉलेज ड्रेस में था और बहुत हैंडसम लग रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। मिराल के फूल ना लेने पर उसके माथे पर बल पड़े। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, तुम मुझे अपना खिलौना समझते हो। मैं सबको बता दूंगी, मुझे तंग ना करो, जाओ यहाँ से। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। वो उसे अपनी तरफ से डरा रही थी, जो खाक असर हुआ था उस पर। डर तो उसकी आंखों में नहीं था। ओह, मिजाज तो अब भी वही है। मुझे पसंद आया, चलो मेरे साथ, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। जितना मुझे समझोगी उतना आसान रहेगा तुम्हारे लिए। उसके लफ्ज़ों में ढकी छुपी धमकी थी। चलो बैठो, वो सख्त लहजे में बोला। गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा रहा। वो घबराती हुई बैठी, नज़रें दूर कहीं खिड़की से बाहर जमाए हुए। अचानक वो उसके करीब झुका। सीट बेल्ट। उसके हाथ उसके करीब आते ही वो एकदम साकित हो गई। उसकी सांसें उसकी गालों को छूने लगी। वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। सांसें उलझने लगी, नज़रें बेइख्तियार मिली। चंद लम्हे खामोशी में कैद हो गए। बस दिल की धड़कनें थी जो शोर कर रही थी, और उसकी आंखों में वही खामोश गुस्सा, वही गहरा राज छुपा था। सीट बेल्ट की क्लिक के साथ ही उनके दरमियान की दूरी ख़त्म सी हो गई, मगर उनकी नज़रें एक दूसरे में उलझ गईं। वो दूर हुआ तो मिराल की सांस बहाल हुई। उसके हर बात पर ज़बरदस्ती करना, अपने साथ ले जाना। मिराल का फिर वही रोना धोना शुरू हो गया। उस दिन के बाद हर 2 दिन बाद उमैर किसी न किसी बहाने आता। 1-2 बार किसी ने देखा तो उन्हें यही कहने लगा कि वो उसका दोस्त है, जबकि मिराल घबरा जाती थी। उसे उमैर की समझ नहीं आती थी कि वो क्या चाहता है, क्यों उसके पीछे पड़ा है। वो तो गरीब है और उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। रातों को बस रोती रहती, डर डर कर सोती थी। अब उसने सोच लिया था, शायद शुरू में उसका जवाब ना देने पर वो बदला ले रहा है। कुछ दिन करेगा फिर खुद ही छोड़ देगा। तब तक वो किसी को नहीं बताएगी, सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी। मिराल, आज के दिन की खूबसूरती तुम हो। आज फिर उसे वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में ले आया, जहां आने की वो अक्सर ख्वाब देखा करती थी। अब उमैर की शक्ल में वो सब देखने को मिल रहा था, पर दिल खुश नहीं था, खौफ में था। उसे ये सब खुशी नहीं दे रहा था। डर में भला जीना भी
होता है क्या कोई जीना? और तुम आज के दिन की सबसे बड़ी नहुसत हो। वो गुस्से से जवाब में बड़बड़ाई, मगर उमैर ने सुन ली। वो हंसा था, जैसे इस गुस्से में भी कोई कशिश महसूस हो रही हो। मिराल का अंदाज बहुत क्यूट लगता था उसे। तुम मुझसे नफरत करती हो ना? हाँ, दिल से, वो नम निगाहों से बोली। तो मैं कोशिश करता हूं कि वो नफरत जल्दी मोहब्बत में बदल जाए, क्योंकि मैं रोज थोड़ा थोड़ा तुमसे प्यार करने लगा हूं, उमैर शरारत से कहने लगा। उसकी बातों से मिराल का चेहरा हया से सुर्ख हो जाता, धड़कन तेज, लेकिन वो अपनी शिद्दत दिखाने से बाज नहीं आता। छोटी छोटी शरारतें, छेड़छाड़, मोहब्बत के बहाने, मगर लहजा कभी नरम और कभी गरूर से भरा होता। कभी कभी उमैर खुद भी हैरान था अपने रवैये पर कि वो कैसे बदल गया इतनी जल्दी। इतना चेंज खुद में देखकर हैरान था, और आसपास के दोस्त भी। मिराल जैसे ही अस्पताल से निकली, वो आज भी खाना देने आई थी। उसकी बहन को अब बस 1 हफ्ते तक रखना था डॉक्टर्स ने। मिराल शुक्र का सांस लेगी, तब उसे यहाँ आना जाना नहीं होगा। अभी वो इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। अचानक एक महंगी कार उसके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और उमैर हमदानी अंदर से झांका। चलो बैठो, आज अच्छा खाना खिलाऊंगा। नहीं, मुझे जाना है, प्लीज़ रास्ता दे, मिराल ने नज़रें झुकाते कहा। दिल तेज धड़कने लगा। वो अब रोज़ रोज़ उसकी ज़िद पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो समझता क्यों नहीं था। अब मिराल को भी गुस्सा आने लगा था। उमैर कार से बाहर निकला, कदम कदम चलता उसके करीब आया। डार्लिंग, कितनी बार कहा है इनकार नहीं सुनता मैं। वो पीछे हटी, मगर उमैर ने आहिस्तगी से उसकी कलाई थाम ली। डर लगता है मुझसे? वो हौले से सर हिलाने लगी। हाँ, मैं। उमैर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। बस यही तो अच्छा लगता है तुम में, डरे हुए भी साथ चलती हो। और फिर ज़बरदस्ती उसे कार में बिठा लिया। मिराल बेचैन सी बैठी थी, नज़रें झुकाए, हाथ बार बार दुपट्टे की चुंटों से खेलते। उमैर उसे देख रहा था जैसे वो हर हरकत दिल पर नक्श कर रहा हो। कुछ कहोगी? उसने नरमी से पूछा। क्यों लाते हो मुझे रोज़? जबरन ले आते हो मुझे अच्छा नहीं लगता। मिराल रोने जैसी हो गई थी और आवाज़ में नमी झलकने लगी थी। उमैर हंसा और झुककर उसके हाथ पर हाथ रखा। क्योंकि तुम्हारी ये नज़रें, ये लरसती आवाज़ और ये डर मुझे रोज़ थोड़ा थोड़ा मोहब्बत सिखाता है। मिराल घबरा कर हाथ हटाने लगी, मगर उमैर ने मजबूती से पकड़ लिया। मिराल का दिल ज़ोर से धड़का। मैं तुम्हें बदलने नहीं आया मिराल डार्लिंग, मैं खुद को तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ। अच्छा, अब रोना शुरू मत कर देना, खाना खाकर निकल जाएंगे। ओके, आराम से बैठी रहो, आता हूँ मैं, उमैर ने नरमी से कहा। उसकी आंखों में बरसात का मौसम देखता समझ गया था। उसे एक कॉल आ गई। ऑर्डर देता उमैर फ़ोन पर किसी से बात करने के लिए बाहर निकला। हाँ, मैंने कहा था ना, उमैर हमदानी को कोई हरा नहीं सकता। ये मिडिल क्लास क्या लोग हैं। खैर, मैं अभी मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करते हैं। वो किसी से तंज़ी अंदाज में बात करता हंसा था। अंदर मिराल मेज़ पर अकेली बैठी, नज़रें दरवाजे पर जमी थी। वो घबराहट महसूस कर रही थी। अचानक रेस्टोरेंट में दाखिल होते 3 लड़के उसके करीब आकर खड़े हो गए। अरे वाह, कैसी गुड़िया टाइप लड़की है, अकेली बैठी है। क्या बात है बेबी, नंबर दो या साथ बैठने की इजाज़त। वो लड़के उसे देखकर छेड़ने लगे थे। मिराल की सांसें रुकने लगी थी, हाथ कँपाने लगे और दिल खौफ से लर्जा। उमैर के आने की शिद्दत से दुआ करने लगी। प्लीज़ मुझे जाने दें। उसकी आवाज़ भीग गई, आंसू पलकों से टपक पड़े। एक लड़के ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था, तभी पीछे से एक पुरजोश आवाज़ गूंजी, हाथ नीचे वरना काट दूंगा। आसपास लोग सब मुड़ मुड़ कर चौंके। उमैर हमदानी वहाँ खड़ा था, आंखों में आग, चेहरे पर जुनून। लम्हे भर में वो लड़कों के करीब पहुंचता, एक को गिरेबान से पकड़कर जोर से ज़मीन पर पटकता। मेरी बीवी पर नज़र डालने से पहले कब्र का साइज सोचा था? दूसरे को मुक्के, तीसरे को लाते। वो तीनों हाँफते कांपते बाहर भागे।
غصے اور جنون میں عمیر نے بہت مارا تھا انہیں. اسے خود سمجھ نہیں آئی کہ اتنی شدت سے غصہ کیوں آیا اسے. کیوں کوئی بھی میرال کے قریب اسے برداشت نہیں ہوا. ریسٹورنٹ کے لوگوں نے بھی آگے جا کر روکنے کی بہت کوشش کی مگر عمیر رکنے والا نہیں تھا. میرال خوفزدہ سی رو رہی تھی. آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھی. عمیر تیزی سے اس کے پاس آیا. جھک کر آہستگی سے اس کے گال سے آنسو صاف کیے. میرال تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں وہ عمیر نہیں تھا. ایک نرم پریشان سا عاشق چھپا بیٹھا تھا. میرال صرف سر ہلا پائی تھی. عمیر اسے آہستہ سے اپنی باہوں میں بھر رہا تھا. جب تک عمیر ہمدانی زندہ ہے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا. غصے اور جنون میں وہ خود سے یہ وعدہ کر چکا تھا. ریسٹورنٹ کے باہر شام کا سناٹا، ہلکی ہوا اور میرال کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو. عمیر نے جب لڑکوں کو بھگا دیا تھا تب اس کی نظریں میرال پر جم گئی. وہ سچ میں پریشان تھی. اس کے چہرے پر خوف تھا اور آنکھوں میں بے شمار سوالات. میرال کا دل بکھرا ہوا تھا. وہ اپنی بے بسی کی حالت میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی. کیوں تم مجھے اتنا تنگ کرتے ہو؟ کیوں؟ اس کی آواز ہچکچائی. آنکھوں میں خوف تھا لیکن عمیر کی نظریں اسے ٹوٹ کر جا رہی تھی. وہ آج میرال کے لیے ڈر گیا تھا. عمیر نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا. میرال کی آنکھوں میں گہرا درد تھا. میرال مجھے دیکھو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا. میں ہوں نا ساتھ. اب بس رونا بند کرو. کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے. نرمی سے اس کی آنسو صاف کرتا محبت بھرے لہجے میں کہا. وہ اس کے سامنے کھڑا تھا. آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ وہ خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرنے لگی. میں ڈر گئی تھی. وہ برے لوگ تھے. وہ پھر رونے لگی. کیوں روتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے لیے کم ہو؟ میرال نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر آہستہ سے کہا. میں خوفزدہ ہوں. میری زندگی میں اتنے لوگ آئے لیکن کوئی مجھے یوں نہیں دیکھتا. عمیر کا دل چکنا چور ہو گیا. اس نے کبھی بھی اتنی سادہ اور معصوم لڑکی نہیں دیکھی تھی. اس کے دل میں محبت کی ایک نئی شدت جاگنے لگی. تم جتنی سادہ ہو اتنی ہی قیمتی ہو. تم مجھے ہر لڑکی سے الگ، سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو. وہ کچھ لمحے خاموش رہا. پھر اس نے آہستہ سے اس کے آنسو پونچھے اور دل سے کہا. آج تک 1000 لڑکیوں سے ملا مگر تم جیسی سادہ اور خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی. آج یہ لفظ اس کے دل سے نکل رہے تھے جس پر وہ خود بھی حیران تھا. میرال کی آنکھوں میں حیرت اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت جاگ گئی. وہ عمیر کو بغض یا نفرت کی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ دل میں ایک نیا سا جذبہ ابھر رہا تھا. عمیر نے گہری سانس بھری اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. آج کے بعد تمہیں کسی سے نہیں ڈرنا پڑے گا. میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہمیشہ. پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ میں اپنا نمبر دیا. اگر کسی دن تمہیں کچھ درکار ہو یا بس کسی سے بات کرنی ہو مجھے کال کر لینا. میرے پاس موبائل نہیں ہے، میرال ڈرتے ہوئے کہنے لگی. شرمندگی بھی ہوئی. وہ جب کوئی گفٹ دیتا وہ نہیں لیتی تھی. اب موبائل کا بتا بیٹھی تو ممکن تھا وہ نہ دے اور وہ نہ لے. عمیر بغیر کسی اور بات کے گاڑی میں شاپ کی طرف بڑھنے لگا مگر پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھا. تمہارا کیا خیال ہے میں جو تمہیں دیتا ہوں گفٹ وہ خیرات ہے؟ نہیں میرال ڈارلنگ، وہ میری محبت کا تحفہ ہے. اسے تمہیں قبول کرنا پڑے گا. پھر اس نے بہت شاپنگ کروائی، موبائل دلایا جس پر اس کے لاکھ انکار پر بھی وہ ضد کرتا تو آخرکار میرال نے ہار مان لی. اپنا خیال رکھنا، کل ملتے ہیں. اس کی گلی میں گاڑی روکتا اس کی طرف جھکا، ایک شدت بھرا بوسہ اس کے گال پر دیتا پیچھے ہوا. میرال ساکن اپنی جگہ بیٹھی اس کے لمس کو محسوس کرتی رہی. آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی. آج حالات بدلے ہوئے تھے. دلوں کے موسم اچانک بدل گئے تھے اور میرال کو وہاں خاموشی میں چھوڑ کر چلا گیا. لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا زور سے. ہاتھ گال پر رکھے وہ کئی لمحے حیرت میں ڈوبی رہی. میرال نے گاڑی کو دور جاتا دیکھا. دل میں ایک نئی تبدیلی کا احساس ہوا. وہ جانتی تھی کہ یہ سفر ابھی شروع نہیں ہوا تھا مگر وہ اندر سے بدل چکی تھی. کیا یہ رشتہ محبت کی طرف جا سکتا ہے؟ وہ خود سے سوال کر بیٹھی. رات کا سناٹا، میرال کا کمرہ
उसकी नरम चांदनी में घिरी हुई खिड़की, हवा के झोंके से पर्दे हिल रहे थे। मिराल अपने बिस्तर पर लेटी हुई, आंखें बंद थीं, मगर जहन में उमैर की सूरत, उसकी बातें और उसकी आंखों का अक्स छाया हुआ था। आज का लम्स गाल पर शिद्दत से महसूस हो रहा था। वो सारी रात उसे सोचती रही, सोच रही थी कि वो किस तरह उसे तंग करने के बावजूद उसके लिए एक मुहाफिज बन गया था। कैसा था वो? उसके जहन में वो लम्हा बार बार आ रहा था जब उमैर ने लड़कों को मारा था और फिर उसे गले लगाकर आंखों के आंसू पहुंचे थे। वो हल्का सा मुस्कुराई। दिल में एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती थी जब जब उमैर का ख्याल आता। किस तरह वो मुझे इतनी अहमियत दे रहा था, कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। मिराल का दिल धड़कने लगता। वो ऐसा महसूस करती थी। कैसा है वो? क्यों मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मुझे ख़ास बनाता है? रात की खामोशी में उसकी सोचें गहराइयों तक चली जाती। वो याद करती कि जब उमैर ने उसके आंसू साफ किए थे और वो कहा था कि वो हमेशा उसके साथ होगा। क्या ये सच है? क्या वो वाकई मेरे साथ है? उसके दिल में एक अनजान सा जज्बा जागता। मिराल को लगता कि वो उमैर की मोहब्बत के जाल में आ रही है। क्या मुझे ये एहसास होना चाहिए? क्या ये सही है? फिर वो अपने हाथ सीने पर रखती, गहरी सांस लेती और आहिस्ता से बिस्तर से उठकर खिड़की के करीब जाती। चांदनी में उसका चेहरा निखर आता और वो उस लम्हे को गहरी सोच में डूबे हुए महसूस करती। दिल में एक सवाल उभरता, क्या वो हकीकत में मुझसे मोहब्बत करता है? क्या मैं भी उसके साथ रहना चाहती हूँ? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है? वो सच में मुझसे मोहब्बत करता है? क्या मैं भी? शर्माकर दोनों हाथ मुंह पर रख लिए उसने। सारी रात उसके दिल में यही सवाल गर्दिश करता रहता। जो शॉपिंग उसने करवाई वो सब छुपा दी घर वालों से। तैयार रहना शाम 7 बजे। उमैर का मैसेज जैसे मिराल के दिल की धड़कनें बढ़ा गया। क्यों? कहाँ जाना है? धड़कते दिल के साथ जवाब दिया, तुम बस तैयार रहना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। उमैर ने मुस्कुराते हुए मैसेज भेजा, मैं नहीं आ सकती, मुझे आज अपनी दोस्त की मेहंदी पर जाना है। अम्मा अब्बा जाने नहीं देंगे। बाहर, प्लीज़ तंग मत करो। मिराल का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आज पड़ोस में उसकी दोस्त की मेहंदी थी जो हॉल में थी। घर वाले सब नहीं जा सकते थे। माँ उसकी छोटी बहन की वजह से घर पर थी, इसीलिए मिराल को जाना था। और अब इस नवाब की फरमाइश कि उससे मिलो। नहीं जाऊंगी, तुम कहीं भी मुझसे मिलने नहीं आ सकती, तो कहीं और जाने की इजाज़त नहीं दी तुम्हें मैंने। उमैर के धमकी मैसेज पर मिराल का दिल खौफजदा हुआ, लेकिन फिर कुछ सोच कर उसे टाल गई। पर वो नहीं जानती थी अपनी मुसीबत को दावत दे बैठी थी। शाम ढल चुकी थी। मिराल थोड़े तजब्जुब में थी, मगर अंदर कहीं दिल ने थोड़ा सा संवरने का कहा। हल्का सा नेवी ब्लू ड्रेस, खुले बाल और वो मखसूस खुशबू लगाकर तैयार हुई। दोस्त की मेहंदी पर गई। उसे लगा उमैर को नहीं पता चलेगा। उसे भी मिलने से मना कर चुकी थी। रात का वक्त था। अंधेरी सुनसान गली में सिर्फ गाड़ी की रोशनी थी। मिराल अपनी दोस्त की मेहंदी से वापस आ रही थी जब अचानक एक स्याह गाड़ी उसके सामने आ रुकी। वो चौंकी, पीछे पलटने लगी, लेकिन दरवाज़ा खुला और अगले ही लम्हे उमैर ने आगे बढ़कर उसका बाजू झपट लिया। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। उसकी आवाज़ कांप रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। उसकी मौजूदगी का बिल्कुल सोचा नहीं था उसने। वो तो दोस्त की मेहंदी पर भूल चुकी थी उसे। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच निकलोगी? उमैर की आंखों में वहशत, गुस्सा और किसी दीवानगी की झलक थी। उसे गुस्सा इस बात पर आया कि उसने इसकी बात क्यों नहीं मानी, जबकि वो मना कर चुका था उसे कहीं भी आने जाने पर। तो वो क्यों निकली वहां से? उसके साथ आने से इनकार किया और अब यहां। मैं तुम्हें वार्न कर चुका हूं मिराल कि तुम सिर्फ मेरी हो, और जो चीज़ मेरी हो वो किसी और के बारे में सोचे भी, ये बर्दाश्त नहीं मुझे। मना किया था ना तुम्हें, मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाओगी, तो क्यों गई? मुझसे क्यों झूठ बोला तुमने? वो जोर से धाड़ा। मिराल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही,
چیخی چلائی مگر عمیر اسے کار میں گھسیٹ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک فلیٹ میں عمیر اسے زبردستی اندر لے آیا۔ اس کا ہاتھ اب بھی عمیر کی گرفت میں تھا، جس کی انگلیاں جیسے اس کی کلائی میں نقش چھوڑ رہی تھیں۔ میرال کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر خوف۔ جی بھر کر اس پل کو پچھتائی کہ وہ کیوں دوست کی مہندی پر گئی، لیکن ماں نے بھیجا تھا اسے۔ وہ تو عمیر کے ڈر سے گھر سے بھی نہیں نکل رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں میری زندگی خراب کر دی؟ کیوں؟ میرال تقریباً چلائی، پھر منہ پر ہاتھ رکھتی شدت سے رونے لگی۔ کیوں گئی جب میں نے اجازت نہیں دی تھی؟ تو کیوں گئی تم وہاں جا کے؟ ڈانس کیا؟ بولو۔ وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو آج اتنا غصے میں نہ ہوتا۔ غصے میں عمیر اس کے اتنا قریب ہوا کہ میرال پیچھے دیوار سے جا لگی۔ میں نہیں گئی تھی، اماں نے بھیجا تھا۔ ہم لوگ بچپن سے آتے جاتے ہیں، اسی لیے گئی تھی۔ میں نے وہاں کچھ نہیں کیا قسم سے۔ وہ زبردستی لے گئی تھی ناچنے کے لیے۔ میرال روتے ہوئے جلد اپنی صفائی دینے لگی۔ نہیں میرال، آج چھوڑ دیا تو تم پھر وہی حرکت کرو گی، ایسے نہیں مانو گی۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، لیکن پیار سے نہیں۔ تم میری ضد نہیں جانتی ابھی تک شاید۔ آج دیکھو میرا غصہ، میری شدت، میری نفرت، سب دیکھو۔ دوبارہ غلطی کرنے سے پہلے 100 بار سوچو گی میرال۔ وہ غصے میں آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ ڈر لگ رہا ہے نا؟ بس یہی ڈر دیکھنا چاہتا تھا۔ میرال کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ نہیں کر پائی برداشت اس کا غصہ، اس کا جنون۔ کچھ گھنٹے بعد وہ نیم ہوش میں تھی۔ میرال نے آنکھیں کھولی تو اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ عمیر کو دیکھ رہی تھی جو اس کا ہاتھ تھامے اس کی طرف جھکا ہوا تھا۔ میرال تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی نرم شدت تھی۔ میرال کی زبان جیسے سوکھ گئی تھی، دل جیسے رک سا گیا تھا کہ کہیں وہ پھر شروع نہ ہو جائے غصے میں۔ میرال کو اس کے غصے سے بہت خوف آتا تھا۔ میں تمہیں دنیا کے ہر ڈر سے بچانا چاہتا ہوں، مگر اپنے طریقے سے۔ آج جو بھی ہوا، پر آج کے بعد تم صرف میری سنو گی، عمیر ہمدانی کی۔ میرال نے ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر بہت مشکل سے سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم نہیں، آپ کہو گی۔ کیا؟ میرال ابھی اٹک کر بول رہی تھی کہ عمیر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے چپ کروایا، پھر اسے ذرا سخت لہجے میں بولا، آپ۔ میرال ڈر سے کہا۔ آنکھیں نم تھیں۔ عمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور اس کی معصومیت پر۔ ہسپتال کے باہر ایک چھوٹا سا کیفیٹیریا تھا جہاں آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ میرال تھکی ہوئی سی دوپہر کی چائے لینے آئی تھی۔ اسے ایک سینئر ڈاکٹر نے بھیجا تھا۔ جب اچانک وہ رک گئی، جس کا ڈر تھا وہی سامنے موجود تھا۔ وہ اس کے ڈر سے چپ چھپ کر آئی تھی، لیکن وہ وہی تھا، عمیر ہمدانی، کسی لڑکی کے ساتھ ہنستا مسکراتا، اور وہ لڑکی اس کا بازو تھامے بیٹھی تھی۔ میرال کا دل جیسے سینے میں ڈول گیا، قدم رک گئے اور ہاتھ کی گرفت کپ پر سخت ہو گئی۔ نہ جانے کیوں یہ منظر آنکھوں کو بہت چبھ رہا تھا۔ یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ عمیر نے اس لڑکی کو چاکلیٹ پیش کی۔ کتنی سویٹ ہو تم۔ شاید۔ عمیر کی نظریں اچانک میرال پر پڑی، پر اس نے چہرہ موڑ لیا، گویا وہ غیر ہو، جیسے جانتا ہی نہ ہو اسے۔ میرال کا دل جیسے چیخ اٹھا، آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، بھلے اس نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہو، لیکن اس کا ہر وقت اسے ساتھ لے کر گھومنا، اس کا خیال رکھنا، اس سے محبت سے پیش آنا، وہ سب اس کی بدتمیزی اور زبردستی کو بھلا بیٹھی تھی۔ تو وہ جو مجھے زبردستی اٹھا کر لے جاتے تھے وہ جھوٹ تھا؟ جو میرا ہاتھ پکڑتے تھے، میرا خیال رکھنا، مجھ سے محبت سے پیش آنا، تو واقعی میں بھی ایک کھلونا تھی؟ اس نے خود سے کہا۔ عمیر کا یوں رخ موڑنا اسے بہت دکھی کر گیا تھا۔ وہ چھوٹی تھی اس عمر میں، خواب دیکھنے کی عمر تھی اس کی۔ اکثر خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹی، مگر دل رو رہا تھا۔ رات کو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ مجھے جلن کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں چاہا تھا اسے، تو دل کیوں ٹوٹا میرا؟
क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ या मोहब्बत? सारी रात रोती खुद से जंग लड़ती रही वो, मगर अगली सुबह फिर वो सामने मौजूद था। मिराल, तुम मुझसे खफा हो? वो चुप रही। वो सिर्फ एक कज़न है जो शादी के लिए आई है, पर मैंने इनकार कर दिया है, उसने कंधे उचकाकर कहा, जैसे एक आम सी बात हो। लेकिन मिराल के दिल से पूछता कि ये आम सी बात उसे कितनी चुभी थी। तो मेरे सामने ड्रामा क्यों किया? उमैर धीरे से करीब आया, उसकी आंखों में झांका जो फिर बहने को तैयार थी। इसीलिए ताकि तुम्हें थोड़ी सी जलन हो और तुम्हें अंदाज़ा हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। उसकी बातें मिराल को अक्सर समझ नहीं आती थी। वो बातें घुमाने में माहिर था। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। मिराल की आवाज़ में डर था, एक खौफ था उसे खोने का। आंखों में जलन, दिल में दर्द और लहजे में तूफान था। हिम्मत करती आज पूछ रही थी अपने सवालों का जवाब। हाँ मेरी जान, मैं क्यों बदलूंगा? अच्छा अब चलो अच्छा सा खाना खाते हैं। उमैर हमदानी जानता था मिराल को कैसे मनाया जा सकता था, और फिर थोड़ा बहुत उसका शक दूर कर चुका था। शाम के वक्त की खुनक हवा हल्की हल्की चल रही थी। वो लोग आज बाहर निकले थे। उसकी बहन को 2 दिन पहले अस्पताल से छुट्टी मिली थी, तो माँ का कहना था उसे ज़रा बाहर घुमा लाओ। एक छोटे से कैफे के बाहर लोगों का हुजूम था। मिराल अपने कज़न के साथ खड़ी किसी बात पर हंस रही थी। सादा सा लिबास, खुली जुल्फें और वही मासूमियत से भरपूर चेहरा, मगर वो नहीं जानती थी कि उसे देखने वाली 2 सुर्ख आंखें दूर से शोले बरसा रही थी। उमैर जो इत्तेफाकन अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजर रहा था, जैसे ही उसकी निगाह मिराल पर पड़ी, उसका पूरा वजूद गुस्से से सुलग उठा। मिराल, वो गुस्से से आगे बढ़ा, बिना कुछ सोचे उसे बाजू से थाम कर जबरदस्ती हुजूम से कोने की तरफ ले गया। उसका कज़न हैरान रह गया, मगर उमैर की आंखों की सुर्खी देखकर पीछे हट गया। मिराल उसकी हरकत पर खौफजदा हो गई। उसकी अचानक मौजूदगी का वो तस्वुर तक नहीं कर सकती थी। उमैर, ये क्या बदतमीजी है? सब लोग देख रहे हैं। मिराल डर गई थी उसकी सुर्ख आंखों में देखकर। उमैर ने उसे दबोच कर दीवार के साथ लगाया। उसके चेहरे के करीब आकर दांत पीसते हुए बोला, जो मेरा है डार्लिंग, वो सिर्फ मेरा है, समझ आई? उसके अंदाज में जुनून था। मिराल ने आंखें नम कर दी। दिल तेज धड़कने लगा। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, क्यों मुझे तंग करते हो? वो कांपते हुए लहजे में बोली थी। उमैर की गिरफ्त उसके बाजुओं पर मजबूत थी। उमैर की सांसें उसके चेहरे से टकराईं। निकाह करके छोड़ दिया तो ये मतलब नहीं कि तुम आज़ाद हो। तुम मेरे नाम की हो, मेरा हक हो, और मैं तुम्हें किसी के साथ हंसते देखूं, वो भी किसी लड़के के साथ? उसका लहजा अब जलन से भरा हुआ था। वो नहीं देख सकता था मिराल को किसी के साथ भी। खुद जो दिल चाहे करे, पर मिराल पर हक जताना लाजिम समझता था। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, डैमिट, गुस्से में कहता वो मजीद करीब हुआ। मिराल की सांसें उलझने लगी, उसके होंठ लर्जे। वो मेरा कज़न है। खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर वो मजबूत मर्द था। मुझे परवाह नहीं। उमैर का लहजा धीमी शिद्दत में डूबा हुआ था। आज के बाद तुम किसी गैर मर्द के साथ ऐसे नजर आई ना, तो कसम है मिराल, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। उसका इशारा एक तो उसके साथ उसके कज़न पर था। वो जितनी मासूम और हसीन थी, सादा से लिबास में, खुले बालों में कयामत लग रही थी। इसीलिए तो उमैर को आग लग गई थी। कोई उसकी चीज़ को देखे तो वो आंखें नोच लेगा उसकी। उसके अंदर जुनूनी आशिक बाहर आ गया था। वजह उसका कज़न भी था। वो जिन नज़रों से मिराल को देख रहा था, वो तो महसूस नहीं कर पाई, पर उमैर इतना बच्चा नहीं था। वो पलटकर जाने लगा, फिर एक लम्हे को रुका, उसकी तरफ मुड़ा और नरम मगर जानदार लहजे में बोला, तुम्हें लेने बहुत जल्द आ रहा हूँ। तुम्हें मेरी बीवी बनकर मेरे साथ मेरे घर जाना होगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, और जो मेरा होता है वो सिर्फ मेरा होता है। वो धमकी देता तेजी से चला गया। मिराल वहीं खड़ी रह गई। धड़कनों के शोर में सिर्फ उमैर की आंखों की वो शिद्दत याद रह गई।
عمیر نے میرال کو سختی سے خبردار کیا تھا اور پھر وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میرال کی آنکھوں میں وہ غصہ، وہ بے بسی، وہ نفرت، اور پھر وہ لمحے جب اس نے اس کی طرف سے ہٹنے کی کوشش کی تھی۔ سب کچھ عمیر کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میرال بھی وہیں کھڑی کٹ کر رہ گئی تھی۔ عمیر کا رویہ اتنا شدید تھا کہ وہ کچھ بھی کہہ نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عمیر اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا جسے کسی نے اس کے اندر کی دنیا ہلا دی ہو۔ وہ عمیر کے جنون اور شدت کو کچھ دنوں سے محسوس کرنے لگی تھی۔ ڈر بھی تھا تو کہیں دل کے کونے میں ایک خوشی، خواہش کہ کوئی اسے اتنا چاہ سکتا ہے، وہ بھی ایک امیر زادہ۔ اگلے دن وہ غصے میں ساری رات نہ سو سکا اور صبح کالج جانے کی بجائے میرال کے راستے میں آیا۔ وہ خود کالج جا رہی تھی، اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنے فلیٹ پر لایا تھا۔ میرال کو اب جیسے اس کے روز یوں لے جانے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ پورے راستے خاموش رہی تھی۔ میرال، تم نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ عمیر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ میرال اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں غصہ اور ٹوٹ پھوٹ کی جھلک تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ عمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے قریب آ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ جو میں چاہتا ہوں وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ میرال نے کمرے کا ماحول اور عمیر کی شدت کو محسوس کیا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا تم واقعی یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہاری آزادی پر کمپرومائز کروں گا؟ عمیر نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گال پر رکھے ہاتھ کو ذرا رب کرنے لگا۔ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ آج تک اتنا قریب نہیں آیا تھا جتنا آج آ رہا تھا۔ میں تمہاری باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ تم ہمیشہ غصہ کرتے ہو، جب دل چاہتا ہے اٹھا کر لے آتے ہو۔ میری مرضی کبھی پوچھی نہیں۔ غریب ہونا اس لیے ایسا کرتے ہو؟ میں کچھ کر نہیں سکتی۔ میرال نے دکھ سے کہا۔ نہ جانے کیوں آج تک اسے پھر اپنی غریبی کا رونا آ رہا تھا۔ ڈر تھا وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے گھر والے کہاں ان عام لوگوں کو قبول کریں گے؟ عمیر کا چہرہ اس کے قریب آ گیا۔ کیونکہ تم میری ہو میرال، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم کسی اور کے ساتھ وقت گزارو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا ہر لمحہ، ہر قدم میرا ہے۔ عمیر جھک کر اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرنے لگا۔ میرال کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر پھر وہ سوچنے لگی کہ عمیر کی یہ شدت بھی شاید محبت کی ایک شکل ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے اندر بھی کچھ خاص ہے جو اسے اس کا بنا رہا تھا۔ تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہوں؟ میرال نے آنکھیں بند کرتے پوچھا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتا مزید اسے قریب کیا۔ عمیر نے اس کا چہرہ پکڑ کر نرم لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ تم میری زندگی کا حصہ ہو میرال ڈارلنگ، اور جو کچھ تمہارا ہے وہ صرف تمہارا نہیں، میرا بھی ہے۔ میرال کو لگنے لگا کہ عمیر کی محبت میں کچھ حدیں ہیں، کچھ شدتیں ہیں جو اسے باندھ رہی ہیں، اور وہ اس کے حصار میں ہے۔ وہ اب بھی اس کی باتوں پر خاموش تھی، مگر آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ بس بہت ہو گیا، وہ بولی، مگر آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ تم مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ نہیں سکتی، وہ دھیرے سے سرگوشی نما بولا، کیونکہ تم جانتی ہو ہم دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہے جو صرف لفظوں سے ختم نہیں ہوتا۔ اگلے لمحے وہ جذبات کی شدت سے اسے اپنے حصار میں لے آیا۔ اس کا لمس، اس کی قربت، وہ سچائیاں جنہیں وہ چھپاتی آئی تھی، سب ٹوٹ کر بہہ گئے۔ وہ ہچکچائی، اسے روکا، مگر وہ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بولا، میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، اور تم میری ہو، صرف میری۔ وہ اس کے لمس میں، اس کے جذبوں میں پگھل گئی، بے بس ہو گئی اس کے عشق میں۔ آج عمیر خود کو روک نہیں پایا، اسے خود میں بھینچ گیا۔ میرال تیار نہیں تھی اچانک سب اس کے لیے، لیکن عمیر کی قربت نے اسے خود میں الجھا دیا تھا۔ وہ ساری شدت سے اپنا حق جتاتا گیا، محبت سے، لیکن مکمل اختیار سے۔ کچھ دیر بعد جب وہ اس کے سینے سے لگی ساکت پڑی تھی، اچانک اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔
वो उठा और उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं जानता हूं और मैं वादा करता हूं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। उमैर की आंखों में नरमी थी, मोहब्बत थी। उसे पाकर सुकून सा मिला था उसे। मैं खुद जाऊंगा और जल्द ही अपने घर वालों को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। रुखसती के साथ तुम्हें तुम्हारा हक, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ दूंगा। बस मुझ पर एक बार फिर यकीन कर लो। वो कुछ ना बोली, बस आंखों से उसके वादे को पढ़ती रही। अब सिर्फ वक्त ही फैसला करेगा कि वादे वफा होते हैं या फिर एक बार फिर दिल टूटता है। अगले दिन वो अपने घर वालों के साथ बैठा निहायत संजीदगी से उनसे बात कर रहा था कि मैं निकाह कर चुका हूँ और मैं अब उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, वो रुखसती के साथ। उसके वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। किससे? उस गरीब मामूली लड़की से जो हमारे बराबर की भी नहीं। बाप ने नफरत से कहा। माँ खामोशी से बेटे और शौहर की बहस सुन रही थी। क्या कमी थी इस घर में जो तुमने ऐसी लड़की का इंतखाब किया? छुपकर निकाह, हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया तुमने। मॉम डैड, उसकी कोई गलती नहीं। वो मुझे पसंद आई, अब मेरी बीवी है, मेरा फ़र्ज़ है। उमैर ने कल उसके साथ गुजरे लम्हों को भुला नहीं पाया। अब उसे लगा वो मज़ीद दूर नहीं रह सकता मिराल से। उसे एक फ़ैसला लेना होगा, लेकिन यहाँ घर वाले राज़ी नहीं हो रहे थे। खामोश हो जाओ, बाप ने मेज़ पर हाथ मारा। वो इस घर में कभी नहीं आएगी। उसका बाप बहुत गुस्से में था। अगर आप लोग राज़ी नहीं हुए तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। उमैर को आता था अपने घर वालों को राज़ी करना, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आखिरकार वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि वो इकलौता था। दूसरी तरफ मिराल के घर में तूफ़ान आया हुआ था। माँ ने उसे ज़मीन पर फेंकते हुए चीखी, यही सिखाया था मैंने, छुपकर निकाह, हम पर जुल्म किया तूने। बाप ने थप्पड़ मार दिया। गैरत बेच आई तू, हमारे मुंह पर कालक मल दी। वो रोती रही और हाथ जोड़ती रही। मिराल को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसे कल शाम को घर छोड़ता उमैर गया था और उसके कज़न ने सब कुछ देख लिया। घर जाकर बताया तो मिराल को मजबूरन सब कुछ सच बताना पड़ा माँ को। अब्बू, उसने निकाह किया है मुझसे, इज्जत दी है, छोड़ा नहीं। वादा किया है कि वो आएगा अपने घर वालों को लेकर। क्या करेगा वो? अपने महल में बिठाएगा तुझे? माँ ने तंज किया। ये ख्वाब देखना बंद कर, वो लड़का तुझसे दिल लगी करके भाग जाएगा। उसके जिस्म पर मार के निशान उभर आए, मगर दिल के जख्म उनसे कहीं ज्यादा गहरे थे। वो कमरे के कोने में बैठी हिचकियों से रोती, बस इतना सोच रही थी, क्या मोहब्बत हमेशा इतनी अजियत देती है? फ़ोन की दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो मार रहे हैं मुझे, उसकी आवाज़ लरज रही थी। कहते हैं कि मैंने उनकी इज्जत खाक में मिला दी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मिराल की रोती हुई आवाज़, उसकी चीखें उमर की मुट्ठी भींच गई। आंसू उसकी मोहब्बत की आंखों में थे, मगर आग उसकी अपनी आंखों में जल रही थी। बस अब और नहीं। वो गुर्राया और फिर तेजी से उठा। अब जो भी तुम्हें हाथ लगाएगा वो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। गुस्से में उठा और उसकी तरफ रवाना हुआ। कुछ ही देर बाद उसके काले रंग की कार के साथ उस गली में दाखिल हुआ जैसे तूफान का आना था। सब मोहल्ले वाले दरवाजे के बाहर लड़की की चीखों पर जमा थे। वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर घुसा। बाप ने जैसे ही दोबारा हाथ उठाया, उमैर ने उसका हाथ रोक लिया। बस, उसकी आवाज़ गरजदार थी। मेरी बीवी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? इसे मारने का कोई हक नहीं। निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं। वो गुस्से में उनके बीच आता बोला। मिराल उसे देखती कुछ हौसला मिला था उसे, वरना एक पल को लगा कि वो धोखेबाज निकलेगा। तुम हो कौन? बाप धाड़ा। इसका शौहर। उसने निकाहनामा सबके सामने रखा, और आज मैं इसे इज्जत के साथ अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उमैर के अचानक फैसले पर उसके माँ बाप सब दंग रह गए। तुम सोचते थे ये कमज़ोर है? वो उसके सामने खड़ा होकर बोला। लेकिन अब ये अकेली नहीं है, ये मेरी बीवी है, और मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ इसके लिए।
वो रो रही थी, मगर इस बार आंसू बेबसी के नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से बह रहे थे। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थामे दरवाजे से बाहर निकला। पूरा मोहल्ला खामोशी से देख रहा था। एक लड़की जो कल तक बेबस थी, आज एक मर्द की मोहब्बत की पनाह में थी। तमाशा ख़त्म हुआ तो सब अपने घर चले गए। उमैर उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता था और उसके माँ बाप कभी उनके निकाह को कबूल नहीं करने वाले थे, बल्कि गैरत में उसे मारने लगे थे। अपने घर लाया तो सब गुस्सा हुए, पर उसकी ज़िद के आगे मजबूर हो गए। कब तक कोई आखिर बोलता, आखिर को चुप हो गए सब। मिराल का रो रो कर बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से उमैर ने उसे संभाला हुआ था। चलो आज रात तुम्हें खास जगह लेकर चलता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और वो दिल की पूरी सच्चाई से उसकी आंखों पर एतबार कर बैठी। इस एक माह में उमैर ने उसे इतनी मोहब्बत और ख्याल से रखा कि वो सब दर्द भुला बैठी थी। उमैर के घर वालों का रवैया भी अब थोड़ा बेहतर होने लगा था। उसके घर वाले भी थोड़े बहुत मान गए थे। ये सब उमैर की वजह से हुआ था। मिराल को मोहब्बत हो गई थी उमैर हमदानी से, बेपनाह। पार्टी की रोशनियों में वो उसके साथ दाखिल हुई तो हर नज़र उस पर टिक गई। वो खूबसूरत लग रही थी, मगर अंदर से हौले हौले कांप रही थी। उसे आदत नहीं थी उमैर के साथ जाती। अगर कहीं जाना होता तो आज भी उसे अपने साथ लाया था। दोस्तों ने पार्टी दी थी उसे। इतनी नज़रें क्यों उठ रही हैं? उसने धीरे से सवाल किया। क्योंकि तुम मेरे साथ हो। वो हंसा। उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आया। वहाँ का माहौल थोड़ा अजीब था जो इस वक्त वो समझ ना पाई। कुछ देर बाद उमैर के दोस्त करीब आए। वो दूसरे दोस्तों में मसरूफ़ हो गया था, उसे लड़कियों की कंपनी में छोड़कर। उसने शराब का ग्लास हाथ में लिए कहा, क्या बात है, दिल लगा लिया तुमने? दूसरी ने भी तंजिया तीर चलाए। इसे तो सच बता दो भाई, वरना ये बेचारी बाद में रोती रहेगी। वो उलझ कर उन दोनों की तरफ देखने लगी। क्या मतलब? फिर एक झटके से उसका हाथ पकड़कर वो उसके पास ले गए। ये वही थी जो उस दिन रेस्टोरेंट में उमैर के साथ थी। मिराल को उनके लहजों से खौफ आ रहा था। एक तो सब यहाँ नशई थे, मोहब्बत मोहब्बत खेल था। जाने मन, एक ने कह कहा लगाया। कैसा खेल? आप क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। मिराल ने नासमझी से पूछा। ओ बेबी डार्लिंग, तुम्हें नहीं पता, ये शादी, ये मोहब्बत, ये सब झूठ था। उमैर हमदानी जैसे हर रोज़ लिबास चेंज करता है, वैसे ही लड़कियां। तुम पर भी शर्त लगाई थी। जब तुम उसे जवाब नहीं देती थी तो हम सब हंसते थे उस पर, और उसने कसम उठा ली तुम्हें मोहब्बत में फंसाकर पागल करके छोड़ेगा। बेवकूफ़ लड़की उसके बिस्तर तक आ गई। उन लोगों की खबीस बातें सुनकर मिराल को लगा जैसे किसी ने पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी हो। और तुम बस एक मोहरा, वो लड़की नफरत से कहती, फिर उसे धक्का दे दिया। वो होश में नहीं थी, साकित थी। वो पूल के पानी में गिरी। उसकी चीख फिजा में गूंजी। लिबास भीगा, आंखों से बहते आंसू पानी में गुम हो गए। ऊपर खड़े सब हंस रहे थे और वो पानी में डूबी हुई अपने मोहब्बत के टूटने की आवाज़ सुन रही थी। मिराल पूल में गिरती और पानी में डूबने लगी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों में मोहब्बत की हार थी। वो हाथ पांव मारती रही, मगर कुछ समझ नहीं आया था। पानी की गहराई में गम और तकलीफ छा गई थी और उसकी सांस रुकने लगी थी। पानी में गिरने के बाद वो तेज़ी से ऊपर आई तो सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। आंखों में बेयकीनी, चेहरा आंसू और पानी से भीगा हुआ। हंसी के तूफान में वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी, ठुठरती हुई। टूट चुकी थी। तैरना नहीं आता था, लेकिन आज उसका दिल किया वो इसी पानी में डूबकर मर जाए। कोई बचाने नहीं आए उसे। वो मरना चाहती थी बस। लेकिन अगले लम्हे उमैर हमदानी शोर की आवाज़ पर भागा आया और जब मिराल को डूबते देखा तो जैसे सांस लेना भूल गया। उमैर फौरन पानी में छलांग लगा गया। उसकी नज़रें सिर्फ मिराल पर मरकूज थी। जब उसने झुककर उसे बाजू से थामकर बाहों में उठाकर बाहर निकाला, मिराल की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी सांस तेज़ चल रही थी और वो बेहोश हो रही थी। उमैर ने गुस्से और तशवीश में कहा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मिराल, सांस लो, बस सांस लो। मिराल के जिस्म में लर्जा था। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आना शुरू हुई।
मगर वो अभी भी उमैर की गिरफ्त में थी। उमैर खुद सांस लेकर उसके चेहरे पर अपनी सांस डालकर उसे सांस देने की कोशिश कर रहा था। वो उसके करीब आकर उसका मुंह अपने मुंह के करीब ले गया और नरम तौर पर उसे सांस देने की कोशिश करता रहा। मिराल खांसती हुई मुंह से पानी निकला। ये मंजर सब हैरत से अपनी फटी फटी निगाहों से देख रहे थे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो मिराल, और ये तुम्हें तकलीफ पहुंचाने वाले जो भी हैं मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। ये क्या कर रहे हो? एक दोस्त ने हैरत से पूछा। यही तो प्लान था। लेकिन उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो मजाक में होती। वो भीगी हुई कांपती हुई इस लड़की को अपनी बाहों में लेकर सबके सामने खड़ा हुआ। हाँ, मोहब्बत का खेल खेलने आया था। उसकी आवाज़ बुलंद और साफ थी, लेकिन खेल में खुद ही हार गया। सब चौंक गए। मुझे नहीं मालूम कब ये झूठा दिखावा सच में बदल गया। वो उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन अब जो भी है ये लड़की मेरी ज़िंदगी है, और जो भी इसे तकलीफ़ देगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों से बाद में पूछता हूँ। सब पार्टी में खामोश हो गए। दोस्तों के चेहरे संजीदा हो गए, और वो जिसका दिल डूब चुका था अब न जाने मिराल का क्या रिएक्शन होगा। एक नज़र उस नीम बेहोश वजूद पर डालता सबको घूरता वहाँ से निकला। वो उसे उठाकर एक कमरे में ले आया, शोर शराबे से दूर, लेकिन उसके दिल में तूफान बरपा था। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। चंद लम्हे वो खामोश रही, फिर अचानक जख्मी शेरनी बन गई। क्या सोचा था तुमने? वो चीखी। भीगी आंखों में दर्द था और दिल में तूफान। कि मैं कोई खिलौना हूँ जिससे खेलकर तुम सबके सामने हंसोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उमैर जानता था उसे अगर ये सब सच पता चला तो वह ऐसा ही हाल करेगी। मत कहो कुछ। उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आंसू तेजी से बह रहे थे। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मेरी मोहब्बत, मेरा एतबार, सब तुम्हारे लिए एक तमाशा था। मिराल की आवाज़ बैठ चुकी थी, गुस्से में चिल्लाते हुए। वो खामोशी से खड़ा हुआ, सर झुकाए, फिर धीरे से बोला, हाँ मानता हूँ शुरू में था, तमाशा और खेल था सब। वो चौंकी, आंखें और भी भीग गईं। लेकिन वो खेल ख़त्म हो चुका है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं जानता कि कब तुम मेरी ज़िंदगी बन गई। उसने आहिस्ता से उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया। तुमसे झूठ बोला, तुम्हें दुख दिया, लेकिन ये जो दिल है ना, इसने सच बोल दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। उमैर के लहजे में शिद्दत थी और पछतावा था। मिराल तल्ख सी हंसी अंदाज में कड़वाहट थी। तुम्हें लगता है सिर्फ चंद लफ्ज़ काफ़ी होंगे? नहीं, लेकिन मैं हर दिन हर लम्हा तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि वो लड़का जिसने खेल शुरू किया था अब सिर्फ तुम्हारा होने आया है। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी। मिराल को खोने का डर था। बस एक मौका दो खुद को साबित करने का। वो खामोश रही, दिल की दुनिया जैसे रुकी हुई थी, मगर उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जिसने पहली बार उसके दिल को हिलाना शुरू किया। थोड़ी देर कमरे में मायने खेज खामोशी रही, फिर उमैर से उसकी मजीद चुप बर्दाश्त ना हुई। मिराल, उमैर नरमी से कहता करीब आया। करीब मत आना। वो गुस्से में दूर हुई। आंसू बह रहे थे। क्यों तुम मेरे साथ खेल रहे हो? क्या मिला तुम्हें? तुम्हारी शादी तो हो जाएगी ना किसी अमीर घर में, मुझे क्यों बर्बाद किया? वो रोते हुए चीखी। आज अपना गुस्सा निकालने को मौका मिला था उसे। उमैर ने उसका हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हटी और हाथ उठाकर मारने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ खेल खेला। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लड़के से मैं डर जाऊंगी? उमैर ने झट से उसका हाथ थामा और अपनी तरफ खींच लिया। एक पल में वो बेड पर गिरी और अगले पल उमैर उसके इतना करीब था कि उसके सांसों की हिद्दत चेहरे पर महसूस होने लगी। मिराल सांसें रोके उसे देख रही थी। दिल की धड़कन तेज थी। मारो मुझे। उमैर की आवाज़ सरगोशी में बदली। लेकिन मेरे करीब आने से खुद को नहीं रोक पाओगी, क्योंकि अब तुम्हें भी मेरी आदत होने लगी है। मिराल की सांसें बेतरतीब हो रही थी। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। उमैर ने उसकी कलाई अपने हाथों में कैद कर ली। क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है। नहीं, ये तुम्हारी झूठी जिद है। उमैर ने आहिस्ता से झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मोहब्बत और मान से वो लम्स ऐसा था जैसे दिल की हर दीवार लरस गई हो। मिराल को वो ऐसे ही अपनी मोहब्बत में कमज़ोर साबित करता था। मिराल, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता,
पर अगर तुम दूर जाओगी तो मेरी सांस बंद हो जाएगी। वो लम्हा जहाँ झगड़ा मोहब्बत में बदल गया, जहाँ हाथों की सख्ती लम्स की नरमी में ढल गई, और जहाँ दो दिलों के बीच खामोशी की ज़बान में कुछ बोल दिया गया। मिराल के लब कपकपाए, लेकिन वो कुछ ना बोली। उमैर उसकी सांसों को सुनता रहा और फिर आहिस्ता से सरगोशी की। ये जंग तुम्हारे दिमाग की है, दिल तो कब का हार चुका है मिराल। फिर भी गुस्सा तुम्हें तो है, मुझे माफ़ कर दो। दिल से माफ़ी चाहता हूँ। वो दिल से माफ़ी मांगने लगा। उसका अंदाज उसके छोड़े हुए मोहब्बत के लम्स पर आखिरकार वो पिघल गई थी। उसे माफ़ करती जिंदगी में आगे खुशियाँ देखना चाहती थी। दोनों खुश थे, अपनी मोहब्बत, अपनी जिंदगी में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।